Yeah. if that's possible. Let's do it now. You want to do it now? Or you want to talk to us first? I'm a little lazy right now. Okay, in that case, I can definitely talk to you guys. I actually have a few crowd favorite questions to be asked. Do you want me to proceed with that? Yeah, Sure. sure. And then we have the kick. We'll do it right now after this. When you Okay, tell us. okay. So in that case, let me just proceed with my questions here. So you guys are known as the king and queens of COC. So what brought you to the interest of Clash Royale tournament as an organizer? Um, basically, how we. So someone came to us, right? Hmm. And someone told us that why don't you guys have your own team and why don't you guys go and compete? So the whole point of this is that we're so big that just participating in a tournament as a team would not do us justice. So what we decided is that we want to benefit the community at large, right? There are a lot of people who want to play, a lot of people who play professionally. It's an esport. So I know there's the ESL CWL tournament, but again, not everyone like there's just one, right? So we would like to give other platforms as well available, which may be available to them for other people to play, have fun, and to garner talent. At the end of the day, it's all about you know new talent coming up. One day you can be bottom of the pool, next season you can be on the top of the pool. Definitely, definitely. So our goal is both of us that we help talent come up, help the community, Yeah, and we that's still what have the COC community we improve. we had so much fun in it that this is a new aspect of the game that COC has developed, and we would like to also contribute to it. That's an amazing thought coming out from you guys here. And let me just proceed with the second question. I really like this question actually. So among the two of you, who is the better player? Well, I would say me. she is. I'm just saying she is. So it'll be I easier think for Dr. everyone Mustafa to. is being modest here, but I would still take that. Like, always support the wife, right? He always says, whenever I attack, my fingernails are in the way. Well, I said my fingernails are OP. I restart all time. That's amazing. That's amazing. Okay, so let's proceed with our next question. Any memorable event in Clash of Clans which you two admire? Yeah, when Oh, Something on the there's a back of your lot. head, where Mhm. Something on so the we back of have a your head you lot of guys can events relate. where we've carried global in many ways. Hmm. Um, Most memorable was for me. There were two events. One was when Godslayer went to one global. That's how That we that, met. that that's how. Yes. Yeah. So when I was, I mean, I used to help global, and I just met her, and she asked me. I mean, I was telling her that okay, I'm gonna do this. Like, oh, can I go to one? I'm like, sure. You wanna? I'm like, sure. And then I remember my entire alliance, and you know how we have alliances and all that. All of them Mhm. opposed me. There was a new. I'm like, no, okay, you guys can do what you want to do. We'll do what we want to do. And we did what we had to do, and we went to one by a margin. That was my most memorable season in COC. My second most memorable was um, when we beat the world record at almost 70K or 80K almost. Well, that We was a booked, huge achievement on its own. Yeah. yeah, in January, I believe, last year. We set a Mhm. record, almost 80,000 cups, or 70 plus thousand cups. That no, never, I don't think, even if a Tunnel 14 comes out, it'll take it. Okay, so with that, let's proceed with the next question. What do you guys think about esports in Clash of Clans? It's a good, especially in the era of COVID-19, where Mhm. you cannot really go outside and have sports. So it's a very good way of playing a game where people are interested. People instead of ways like going out, I would say going and getting Get involved, sick. getting sick, getting involved. It's a way of engaging people, And Mhm. the and you. economy is very low. So I mean, if there's a way for us to provide
and earning, might as well do it. And it's And watching talent grow. We've been watching many channel whenever you guys do stream live. Watching talent grow, you know, it's awesome to see it. That's really thoughtful of you guys, because we have a lot of streamers for Clash of Clans, and I think what you guys are doing is really huge for the community, and the community will appreciate all of it as well. So my next question will be actually the purpose of this event. So what are your plans for next year? So we have divided we've spoken to the organizers and ourselves, and obviously my boss right here, just letting everyone know. So we have divided the tournament up into 4 sections. Roughly a pool of 15K between them, and we're gonna split them into 4 tournaments every 3 months. The biggest tournament will happen in December. And then we're going to throw in, besides this pool, smaller tournaments based on the demand of the community. If they so basically, there are going to be 3 seasons, and then all those 3 seasons will be leading up to the huge event at the end. Exactly. It will be a tournament, and let's put it this way, ESL Championship is a big tournament. That will be the next biggest tournament after ESL. I definitely agree, because I'm really excited for this tournament actually, because one of my favorite clans is actually participating, and they have made it to the finals. I am a big fan of Bharat. Okay, so so with this, I actually got all of my answers, and I think what the community wanted to hear from you guys were the plans for next year. So there are more tournaments coming up sponsored by Mr. and Mrs. Mustafa, and I'm pretty sure the entire crowd is really excited for this. All our viewers must be excited, and I think we should proceed with the celebration at the moment. And Mrs. Mustafa, I think we would love to see you celebrate your birthday with us. Oh, definitely. Okay, you want to put it up this way here? Yeah. No, we can't see. Right here. Okay. Right here. So I'll tell you guys, I'm going to take it off this thing a little bit. You guys can see, right? So we're traveling. I'm going to be honest. So what we did is we got someone while we're traveling to make a Clash of Clan cake. And over here, as you can see with the ribbon, can you guys see it? Happy birthday, Stephanie, from Dr. Mustafa. So we're traveling, so try to work with us, everyone. Sorry. You can see it here, hold it like this. So I gotta blow the candle. So she's gonna blow the candle, right? Okay. Yeah. Should I sing happy birthday? Yeah, you should. No, it's okay. Okay. Now you can cut it. Okay, I'm gonna cut it from here. Oh, that looks like a good cake. I'm hungry. Okay, so I'm gonna go off screen and then eat, if that's okay with the audience. And we will be watching the final, and may the best team win. Yep. Good luck to both. And thank you, Tahir. We're good? Tahir? Yes, we're good to go. Thank you so much for Okay, thank guys. you so much for including us Best in of your luck to the 2 celebration. teams, and thank you, everyone. Thank you. Thank you. Bye. So, guys, we just witnessed Dr. Mustafa himself coming and celebrating Mrs. Mustafa's birthday with us. And thank you so much, Mr. and Mrs. Mustafa, to joining us today. So now let's proceed with the tournament. So it won't be just me. There are 2 other big names with us today. So one of them, I'm pretty sure he's everyone's favorite YouTuber. It will be Sumit 007.
बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर भाई। एंड अभी अभी हम लोगों ने डॉक्टर मुश्तबा एंड स्टेफनी मैम का बर्थडे सेलिब्रेशन देखा। एंड अभी फिलहाल असली शुरुआत होने वाली है मैच की। टीम भारत वर्सेस ईजी माइथोलॉजी, ग्रैंड फिनाले स्टेफनी कप का 2020 का। एंड फिलहाल 384 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इस लीग में। एंड हमारे सामने सिर्फ दो ही टीम्स खड़ी है, टीम भारत एंड ईजी माइथोलॉजी। एंड आगे अभी हम लोग मैच स्टार्ट करने वाले हैं ताहिर भाई। So this is one of our analysts, which is Sumit. So the next analyst joining me and Sumit will be none other than Papa Mugambo. तो भाइयों स्वागत है सभी बालक बालिका और लोंडे लोंडियाओं का आज की इस वीडियो में। और भाई आपको मेरा चेहरा थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा कि यार मोगेम्बो का सेटअप कुछ कमजोर सा लग रहा है। और देखो सेटअप वेटअप कमजोर नहीं है, मेरी भाग गई है भाई लाइट, पूरी सोसाइटी की लाइट भाग गई है एकदम भाई, 4 बार नीचे गिर गए सारी लाइट के जितने भी थे। ठीक है, तो हमको करनी पड़ रही है स्ट्रीमिंग अभी फोन के थ्रू, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा होगा। पर छोड़ो, ये तो है भाई साइड की बात है। मेन बात क्या है? मेन बात है आज सेमीफाइनल नहीं, फाइनल है मुस्ताबा कप का। ठीक है भाई, स्टेफनी कप का, सॉरी, बात तो वैसे एक ही है, दोनों एक ही भाई। पर 384 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। खुशी की बात भाई ये है कि यहाँ पे जो फाइनल में टीम पहुंच पाई है उनमें से एक टीम भारत की है। और उससे भी खुशी की बात भाई जो मुझे लगती है, 4 में से जो 3 टीम थी सेमीफाइनल तक जो पहुंची थी, उनमें से 3 टीम भाई भारत की थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्राउड की काफी बात है कि इंडिया वाले इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसके अंदर भाई ग्लोबल की काफी सारी टीम थी, नीस एंड डांस, एसटी फैमिली, बड़ी बड़ी टीमों को हराकर, क्वीन वॉकर्स को हराकर के भाई टीम भारत और ईजी माइथोलॉजी फाइनल तक पहुंचे। तो आगे देखने वाली बात होगी भाई यहाँ से कप को फाइनली कौन उठा पाएगा। Definitely Mugambo bhai. So I think without further delay we should give our streamers what they are looking for. So let's proceed with the first attack. बिल्कुल, अभी हम लोग फर्स्ट अटैक देखने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो मोगी भाई ने बोला कि यहाँ पे 384 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। एंड वहां पे 3 टॉप इंडियन टीम्स ऐसी थी, लाइक टॉप 4 में 3 इंडियन टीम्स थी। एंड वहां पे क्वीन वॉकर्स जैसे, एसटी फैमिली जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल्स के क्लाइंट थे। तो इंडिया की जो टीम्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। एंड आई होप फ्यूचर में भी ऐसे ग्रोथ करती रहेगी। एंड फिलहाल फाइनल में हमारे सामने भारत टीम खड़ी है एंड उसके ओपोनेंट में है ईजी माइथोलॉजी। एंड अभी हम लोग मैच के अटैक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके गाइस, पहला अटैक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 7 नेप्स्टर की तरफ से। एंड अगर हम लोग आर्मी की तरफ देखेंगे मोगी भाई, तो लेजेंडरी आर्मी, आपकी फेवरेट आर्मी, हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा सुमित भाई, एकदम मार्केट में धुम्मा उठाने के लिए उतर गए हैं 7 नेप्स्टर इलेक्ट्रो की आर्मी को लेकर के, जो कि आपके मोगेम्बो भाई की बिल्कुल फेवरेट आर्मी है, क्योंकि भाई इस आर्मी के साथ हमने बड़े से बड़े टूर्नामेंट के अंदर धुम्मा उठाया है। तो ये बंदे भी भाई हमारे चैनल को काफी वैसे क्लोजली फॉलो भी करते हैं, मेरे से कुछ टिप्स वगैरह भी लेते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हमने भाई इनको काफी अच्छी टिप्स भी दी है, समझाया भी है, और खतरनाक किस्म के अटैक भी करते हैं। तो आज देखने वाली बात होगी क्या भाई 7 नेप्स्टर टीम भारत का झंडा ऊपर बुलंद कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे स्टार्टिंग में फनल क्रिएट कर लिया, बेबी ड्रैगन एंड यटी का इस्तेमाल किया था फनल बनाने के लिए। सारे ड्रैगन्स, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स एंड बलून्स इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। ग्रैंड वार्डन की अर्ली एबिलिटी दे दी, डबल रेड स्पेल इन्होंने डिप्लॉय कर दी। एंड इनके पास अभी भी एक बैटल ब्लिम पे जो शायद टाउन पे जाके फूटने का काम करेगी। ऊपर की साइड पे देखेंगे 1 o'clock पे तो बारबेरियन किंग एंड आर्चर क्वीन को डिप्लॉय किया, क्योंकि बाहर की साइड पे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू वहां पे मिलने वाली है। एंड कोई सिंगल इन्फीरियर टारगेट है भी नहीं जो कि किंग एंड क्वीन को टारगेट कर पाएगा। रॉयल चैंपियन इनके पास लेवल 24 की है। टाउन हॉल के यहाँ पे फ्रीज कर दिया टाउन हॉल एंड एयर स्वीपर को। सेकंड स्पेल इन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी। अभी भी एक फ्री स्पेल इनके पास बची है। सारे के सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ईगल आर्टिलरी वो एक ही चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, एंड उसके ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रो ड्रैगन है। जहां से मैं देख पा रहा हूँ उस तरफ से तो अटैक किस तरफ काफी खतरनाक नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी इनके पास स्पेल्स अभी बाकी नहीं है। और सिंगल टारगेट इन्फर्नो सिर्फ एक ऐसा खतरे की घंटी है जो इनको इस अटैक को रोक सकता है। अदरवाइज इस अटैक को सिर्फ नेट ही रोक सकता है, और मैं तो कहूंगा कि नेट भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बेस का बचना काफी मुश्किल है। बिल्कुल अभी भी कैरी ऑन सुमित, कैरी ऑन। बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा आपने बोला कि इस बेस को अभी कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि जिस हिसाब से हीरोज की वैल्यू हम लोगों को मिली थी पीछे के साइड पे, हम लोगों ने देखा 1 o'clock पे हीरोज डिप्लॉय किए थे। एंड 1 o'clock से लेके 6 o'clock तक जो भी बाहर का रास्ता था एंड एक वॉल छोड़ के अंदर के जो भी डिफेंसेस एंड बिल्डिंग्स थे उनको फोड़ने का हीरोज ने बहुत अच्छा काम किया। एंड लगभग टाइम देखो मोगी भाई, यहाँ पे अभी भी 1 मिनट से ज्यादा का टाइम बचा था। एंड उससे पहले इन्होंने यहाँ पे 3 स्टार अटैक कर लिया साब नेस्टर ने। एंड पहले ही अटैक यहाँ पे टीम भारत की तरफ से हो चुका है 3 स्टार। अभी जो प्रेशर है वो ईजी माइथोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा ही होने वाला है, क्योंकि जब ओपोनेंट ग्रैंड फिनाले में पहले ही अटैक 3 स्टार ठोक लेता है तो ऑफ कोर्स प्रेशर तो बहुत ज्यादा ही बनेगा।
बिल्कुल सही कहा आपने। That was a really मार्केट में amazing एकदम attack धुआं coming up. So go on, Mugham, आप बोलिए। हाँ, so that was a really बिल्कुल amazing सही कहा attack आपने। coming सुमित, in from मार्केट में Saad. एकदम धुआं उठा दिया गया है साद नेस्टर की तरफ से। साद नेस्टर की तरफ से मार्केट में एकदम धुआं उठा दिया गया है। पहले अटैक पे ही 3 स्टार मार्केट में चमका दिया गया है। कहीं ना कहीं टीम भारत को एक बिल्कुल बूस्ट करने का ये काम करेगा। आइए चलिए देखते हैं हम अगले अटैक की तरफ। उससे पहले आपको ब्रीफ करेंगे ताहिर। Okay, so that was a really amazing attack. अपने tournament का first attack, the very first attack of our tournament was a 3-star coming in from Bharat, and I'm pretty sure we have really, I mean, we've all had our favorite moments in this, because as soon as the attack started, right, Sumit bhai, I noticed that there was a tornado spell and Grand Warden ability was used a little early. So what are your thoughts on that? Like, why do you think he had to use his Grand Warden ability so early? क्योंकि जितने भी देखो ताहिर भाई, जितने भी मैंने अब तक इलेक्ट्रो ड्रैगन के अटैक्स देखे एंड जो भी 3 स्टार होते हुए देखे, वहां पे मैक्सिमम टाइम लाइक 99% लोग ग्रैंड वार्डन की जो एबिलिटी है वो स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब स्प्रेड होते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन तब वो ग्रैंड वार्डन की ऑरा के अंदर रह के स्प्रेड होते हैं, तो उनके ऊपर उतना ज्यादा डैमेज नहीं होता, एंड ऊपर से वो लोग रेड स्पेल भी डालते हैं, एंड जो इलेक्ट्रो ड्रैगन की चेन वैल्यू होती है उसकी वजह से बहुत अच्छी खासी वैल्यू हम लोगों को इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ मिल जाती है। एंड लास्ट में अच्छे खासे डिफेंसेस एंड बिल्डिंग्स फूटने का पीछे से डिप्लॉय किया जाता है उनका बैटल बीम, जो कि डायरेक्ट जाके फूटता है टाउनल के ऊपर, एंड वहां पे एक स्पेल का इस्तेमाल होता है। एंड पीछे से जैसे कि अभी हम लोगों ने इस बेस के ऊपर देखा 1 o'clock पे हीरोज को इन्होंने डिप्लॉय किया था, एंड 1 o'clock से लेके 6 o'clock तक सारे डिफेंसेस एंड बिल्डिंग्स को हीरोज साफ करते हुए आए थे, एंड लास्ट के स्टिल 1 मिनट 10 सेकंड बच गए थे, उससे पहले ये अटैक 3 स्टार हो गया। हाँ, बहुत ही बढ़िया अटैक था। सो आई थिंक अलोंगसाइड दिस वी शुड मूव ऑन टू द सेकंड अटैक एंड सी हाउ Easy Mythology wants to answer this attack. So Easy, like, I would also like to add on a point regarding Saad here, because Saad is a fan of a hybrid attack and we saw him coming in with the Electro Dragon. बिल्कुल, अभी फिलहाल ताहिर भाई मैं आपको attack. रोकना चाहूंगा क्योंकि अटैक स्टार्ट हो चुका है एंड बहुत पावरफुल आर्मी के साथ आ चुके हैं ताहिर भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इजी माइथोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पहले से ही क्रिएट हो चुका है। एनसीसी के अंदर से यहाँ पे कुछ सुपर मिनियंस एंड हेड हंटर्स निकल चुके हैं जो कि आर्चर क्वीन के चार्ज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने का काम कर सकते हैं। बेबी ड्रैगन को इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है फनलिंग के लिए, एक और सुपर वॉल ब्रेकर इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। लेट्स होप इनकी जो आर्चर क्वीन है वो बाहर की तरफ नहीं चली जाए, एंड आर्चर क्वीन की एबिलिटी यूज हो चुकी है। मोगी भाई क्या लगता है, आर्चर क्वीन की एबिलिटी जो यूज हो चुकी है उससे कुछ फर्क पड़ेगा अटैक पे? फर्क तो आई थिंक जरूर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बेस के लिए जो ये आर्मी चूज करी गई है मुझे कहीं ना कहीं काफी अच्छी नजर आ रही है, और जो इनिशियली वैल्यू मिल पाएगी क्वीन को, हो सकता है इस बेस के ऊपर 3 स्टार शायद जड़ दिया जाएगा इजी माइथोलॉजी की तरफ से भी। बिल्कुल मोगी भाई बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि क्वीन के पास उतनी हेल्थ तो नहीं है, लेकिन आगे सामने अगर हम लोग जाके देखेंगे तो क्वीन को डैमेज देने वाले उतने ज्यादा डिफेंसेस भी नहीं है, एंड हीलर्स आराम से क्वीन को हील करती रहेंगे, एंड स्टिल इनके पास 2 फ्रीज स्पेल्स हैं तो वो आराम से वहां पे एयर स्वीपर को एंड सिंगल इन्फर्नो को फ्रीज कर पाएंगे। ऊपर रॉयल चैंपियन हम लोगों को नजर आ रही है, 2 हेड हंटर्स का भी इस्तेमाल इन्होंने किया है, बारबेरियन किंग के साथ इन्होंने यहाँ पे फनल बना लिया। ऊपर 12 o'clock पे देखेंगे तो सीज बैरक डिप्लॉय करिए जिससे कि पेक्का एंड कुछ विजर्ड फनल बनाएंगे, एंड सारा का सहारा इनका जो हाइब्रिड है जो आर्मी है वो पूरी इन्होंने डिप्लॉय कर दी बीच में कोर में, पीछे से डिप्लॉय कर दिया अपना ग्रैंड वार्डन रॉयल चैंपियन। अगर हम लोग पीछे की साइड पे देखेंगे मोगी भाई, ईगल के आसपास बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हेवीली डिफेंस वहां पे प्लेस्ड है, तो क्या लगता है? बहुत ज्यादा हेवीली कॉम्पैक्ट डिफेंस भी प्लेस है, लेकिन साथ ही साथ क्वीन भी मर गई है जो कि बिल्कुल भी प्लान के अंदर से शामिल नहीं हुआ होगा कि क्वीन का मर जाना कहीं ना कहीं इस अटैक के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि पीछे की तरफ बहुत ज्यादा हैवी डिफेंसेस है और हील अब बची नहीं है, सिर्फ एक रेज और एक फ्रीज बची हुई है जिसको भी यूज कर लिया गया है। अभी सिर्फ रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बची है, लेकिन लास्ट एंड पे ये क्या स्कैटरफोर्ट बचा हुआ है जो कि इस बेस पे काफी खतरनाक तरीके से इसको डिफेंड करने का काम कर सकता है। बिल्कुल, स्कैटर शॉट जो बचा है आखिर में वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है ट्रूप्स को मारने का, लेकिन स्कैटर शॉट के पास जो बारबेरियन किंग था ना उसको अटैकिंग बारबेरियन किंग ने स्टार्टिंग में ही डाउन कर लिया। एंड अगर हम लोग इस बेस के ऊपर देखेंगे डिफेंस ज्यादा बचे, माइनर्स भी इनके पास बचे, लेकिन माइनर्स ना बेस के बाहर है, कोर में नहीं है, मतलब साइड का जो कचरा होता है बेसिकली जो बिल्डिंग्स होती है उनको साफ करने का काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्सपोज है, 2 एक्सपोज यहाँ पे माइनर्स को मारने का काम कर रहे हैं, एंड स्कैटर शॉट की रेंज में आ गए माइनर्स, तो आपको तो पता ही क्या हो जाएगा, धुआं उठ जाएगा यहाँ पे माइनर्स का। धुआं उठ चुका है, बिल्कुल सुमित आपने सही कहा, मार्केट में पहला अटैक फेल हो चुका है इजी माइथोलॉजी की तरफ से। हाई परसेंटेज तब भी कह सकते हैं कि टीम इतनी ज्यादा बैकफुट पे नहीं गई है, क्योंकि 80 से 90% के बीच में जब अगर आपका अटैक होता है तो कहीं ना कहीं आपके वापसी के चांसेस बने रहते हैं वॉर के दौरान। तो इतना बुरा परफॉर्मेंस तो नहीं, पर ठीक ठाक शुरुआत कह सकते हैं। चलो बिल्कुल, अभी हम लोग बढ़ेंगे ताहिर भाई की तरफ। ताहिर भाई आपको क्या लगता है इस अटैक में क्या गलत चीज हुई, लाइक
क्या इसको इनको करना चाहिए था जिससे कि ये अटैक कुछ और रिजल्ट हम लोगों को लाके दे सकता था? Well, I think, to be honest, what really caused him the issues were those headhunters in the clan castle in the start. Like, Yes, as soon as those headhunters came up, I think he could have used the one of his free spells there to help support the queen. Because those headhunters kept doing a lot of damage, and that took out the queen. Matlab, jo main hissa, the important part of the attack was not fulfilled due to those headhunters. And I think that was the only reason why he fell short a little. Because with the queen assisting in the attack, it could have resulted in a better. I mean, it could have been a 3-star, is what I'm trying to say. So that was a really interesting, nonetheless, really good attack coming in from Silent Hill. It was a high percentage 2-star, and I would love to know what Sumit could point out regarding this attack. बिल्कुल ताहिर भाई, मुझे क्या लगा स्टार्टिंग में जो आर्चर क्वीन ने अपनी एबिलिटी गवा दी ना, वो आर्चर क्वीन कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी बचा के रखती। लाइक इन्होंने पॉइजन स्पेल तो डिप्लॉय कर दिया था सीसी के ऊपर, वहां पे फ्री स्पेल की भी जरूरत थी क्योंकि जो सुपर मिनियन थे उनको बहुत ज्यादा ही टारगेट किया आर्चर क्वीन को, एंड आर्चर क्वीन को अनफॉर्चुनेटली उसकी एबिलिटी गवानी पड़ी। अगर कहीं ना कहीं फ्री स्पेल इस्तेमाल करते तो आर्चर क्वीन की एबिलिटी बच जाती, एंड कहीं ना कहीं आर्चर क्वीन आगे जाके और एक्स्ट्रा वैल्यू गेन कर पाती, लाइक 25%, 30%। एंड ऊपर से बारबेरियन किंग भी इन्होंने गलत जगह पे डिप्लॉय कर दिया। ऊपर सीज बैरक जहां पे डिप्लॉय किया वहां पे बारबेरियन किंग डिप्लॉय करते तो ट्रुप्स को पीछे से थोड़ा सा बैकअप मिलता एंड इजीली यहाँ पे 3-स्टार हो सकता था। ये कहीं ना कहीं कुछ गलतियां वगैरह हुई है, लेकिन स्टेज इतना बड़ा है, ग्रैंड फिनाले चल रहा है, तो प्रेशर ऑफ कोर्स बनेगा ही। कितना भी आप प्रिपेयर करके आओ, इतना बड़ा स्टेज होगा, इतना बड़ा प्राइज अमाउंट, इतना बड़ा लीग होगा, तो ऑफ कोर्स प्लेयर के वहां पे हाथ कांपता ही है एंड गलती से मिस क्लिक्स वगैरह हो जाता है एंड अटैक्स फेल हो जाते हैं। लेकिन भारत की तरफ से हम लोगों को बिल्कुल भारत की तरफ से हम लोगों को ऐसा कोई भी चीज देखने को मिली नहीं है। पहले ही अटैक भारत ने आके 3-स्टार कर दिया। भारत के अभी भी 4 अटैक्स बचे। So I think it is still even because this was the very first attack. I mean, the very first attacks coming in from ED mythology. Papa Mogambo bhai, आपको क्या लगा था? What could have we done better? But still, being a good attack as it was already, what could have been done better here? आई थिंक मेरे हिसाब से जो क्वीन चार से जो वैल्यू लेने की कोशिश गई टाउन हॉल के सामने से जाने की, मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ा सबसे गलत स्टेप था, क्योंकि वहां से क्वीन को इस तरह का कोई पाथिंग या रास्ता मिल ही नहीं पा रहा था जहां से वो और ज्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू गेन कर सके विदाउट अपने आप को मरवाए बिना, जो कि आपने देखा भी क्वीन बेचारी मार्केट में वहीं पे ध्वस्त हो गई क्योंकि उसने गलत टारगेट चूज कर लिया और गलत पार्थिंग पे जाना शुरू कर दिया। जो क्वीन से उन्होंने इनिशियली वैल्यू सोची थी जो निकालने की, वो निकाल नहीं पाए, उसी कारण से उनका अटैक फेल हो गया। So with this, let's move on to the third attack of the day. It will be an attack coming in from Bharat. बिल्कुल, अभी भारत की तरफ से हम लोगों को अटैक देखने को मिलने वाला है एंड पहला ही अटैक यहाँ पे सात डेप्स्टर ने नंबर 1 पे 3-स्टार कर दिया इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ, एंड वो लिटरली गाइस 1 मिनट 50 सेकंड्स के अंदर 3-स्टार, वो भी टाउन हॉल 13 पे। ये कोई टाउन हॉल 7 या फिर 8 नहीं है कि आप लोग पहले 2 मिनट में ही 3-स्टार कर रहे हो। टाउन हॉल 13 पे आप लोग पहले 2 मिनट के अंदर 3-स्टार कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड भारत ने पहले ही अपना अटैक 3-स्टार कर लिया है। अभी भी भारत की तरफ से 4 अटैक्स बचे एंड इजी माइथोलॉजी की तरफ से भी 4 अटैक्स बचे हैं। तो भारत के ऊपर प्रेशर आ सकता है, वो प्रेशर तभी आएगा जब इजी माइथोलॉजी की तरफ से कोई 3-स्टार अटैक आएगा। तो अभी हम लोगों को देखना ये पड़ेगा भारत के सेकंड अटैक में क्या होता है, क्योंकि भारत अभी प्रेशरलेस खेलेगी, क्योंकि पहला अटैक भारत का 3-स्टार हो चुका है, तो कोई भी प्रेशर यहाँ पे भारत के ऊपर नहीं है। इजीली भारत यहाँ पे आगे के जो अटैक्स है वो कर सकता है। तो अभी ये देखना पड़ेगा, साइलेंट किलर के ऊपर डेस्ट्रो जा चुके हैं, अभी साइलेंट किलर ने यहाँ पे अटैक किया था एंड फाइनली डेस्ट्रो वापस आ चुके हैं साइलेंट किलर के बेस के ऊपर। बिल्कुल सुमित, यहाँ पे डेस्ट्रो उतर चुके हैं मार्केट में ड्रैगन्स विद बैट स्पेल्स लेकर के, और अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से मार्केट में क्या ये धुम्मा उठा पाएंगे, क्या वापस से 3-स्टार का झटका दे पाएंगे क्या इजी माइथोलॉजी को। आइए देखते हैं। सुमित किसी कारण से शायद डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन अब यहाँ से पापा मोगैम्बो मार्केट को संभाल लेंगे, टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यहीं पे हूँ भाई। अच्छा, आपका चैनल में आपका थोड़ा सा इनविजिबल हो गया था, तो मुझे लगा शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बारबेरियन किंग एंड आर्चर क्वीन के साथ फनल बनाया, बेबी ड्रैगन्स के साथ इन्होंने अपना फनल बनाया एंड पीछे सारे के सारे ड्रैगन्स वगैरह डिप्लॉय कर दिए। टाउनल के ऊपर इन्होंने डिप्लॉय कर दिया अपना बैटल ब्लिम्प एंड वहां पे रेड स्पेल डिप्लॉय करके सारा का सारा जो टाउन हॉल का कंपार्टमेंट था वो फोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। अगर मोगी भाई पीछे की साइड पे अगर हम लोग देखेंगे 3 o'clock वाला कंपार्टमेंट, तो उस कंपार्टमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। वहां पे इन्होंने एक आइस गोलम डिप्लॉय कर दिया एंड रॉयल चैंपियन एंड बैट्स इन्होंने डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। बैट्स को यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्कैटर शॉट यहाँ पे एक हिट भी अगर मारेगा ना तो सारे के सारे बैट्स यहाँ पे गायब हो सकते हैं। यहाँ पे एक फ्री स्पेल इन्होंने डिप्लॉय कर दी इसके ऊपर, सिंगल इन्फर्नो के ऊपर, एंड
एक्चुअली स्कैटर शॉट जो था वो यहाँ पे लॉक हो चुका था रॉयल चैंपियन के ऊपर, तो इसलिए बैट सारे के सारे बच गए, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पे एक स्कैटर शॉट एंड ओ माय गॉड यहाँ पे एक हिट लगा, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ बचे हैं यहाँ पे बहुत सारे बैट्स एंड फ्रिज पे फाइनली इन्होंने डिप्लॉय कर दिया एंड ज्यादा डिफेंस वगैरह बचे नहीं है। क्या लगता है मोगी भाई, टाइम रहते क्या ये अटैक 3 हो पाएगा, क्योंकि क्लीन अप बहुत सारा बचा है एंड क्लीन अप ट्रूप्स है नहीं इनके पास? सुमित, आई थिंक ये अटैक काफी ज्यादा क्लोज होने वाला है, पर शायद 3 स्टार हो भी सकता है, बट नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा क्लोज होगा अटैक। एक्चुअली इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रिडिक्शन करना बिल्कुल फेल होगा, बट शायद 3 स्टार हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ये तो बताएगा टाइम ही, और टाइम के साथ बताएंगे पापा मोगेम्बो सुमित 007 आपके साथ। बिल्कुल मोगी भाई, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3 डिफेंस बचे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा जो स्कैटर शॉट था उनके ऊपर अगर थोड़ा सा फ्रिज स्पेल 1 सेकंड भी पहले डाल देते ना, तो जितने भी बैट्स थे वो सारे के सारे बैट्स बच जाते हैं एंड जो 3 आर्चर टावर्स बचे हैं वो इजीली वो बैट्स टेक डाउन कर लेते हैं एंड क्लीन अप का काम भी कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि सबसे फास्टेस्ट चीज अगर कोई है हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में तो हमारे बैट्स ही है। बहुत ज्यादा बैट्स एंड गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा ही मूवमेंट करते हैं, उनका मूवमेंट स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो इजीली इस बेस को साफ कर सकते थे। लेकिन अगर ड्रैगन्स की बात करें तो वो उतने फास्ट नहीं है कि जितने बैट्स फास्ट होते हैं एंड डिफेंस भी इस बेस के ऊपर बचे एंड क्लीन अप के लिए अगर हम लोग देखेंगे स्टोरेजेस बचे जिनका हिट पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब ड्रैगन का टाइम वहां पे बहुत ज्यादा ही वेस्ट होने वाला है, तो टाइम हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड का बचा है। सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं ये अटैक फेल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत के लिए फिर भी देखने वाली एक अच्छी बात यह है कि अभी भी इन लोगों का डिस्ट्रक्शन अपोनेंट के पहले अटैक से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी भारत इसके अटैक के फेल होने के बाद भी एडवांटेज में रहेगा। जस्ट अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने नेक्स्ट अटैक पे ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल भी टेंशन लेने से पहले, टेंशन के बिना अटैक करने की जरूरत है भारत को। बिल्कुल मोगी भाई, सही बात बोली आपने। जो टेंशन है, प्रेशर बिल्कुल भी अभी हम लोगों को नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो भारत का डिस्ट्रक्शन है वो 95% हो चुका है, जो कि इजी माइथोलॉजी का पिछले अटैक में उनका डिस्ट्रक्शन भारत से कम था। तो अभी प्रेशर कोई भी नहीं है, तो अभी हम लोग फिलहाल ताहिर भाई की तरफ बढ़ते हैं। ताहिर भाई का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? Well, second attack was really interesting, Sumit, because what excited me was Bharat fell short of time here. They had a very well strategy planned, but unfortunately, those bats did not have anyone supporting them, and they were just being taken out by those 3 archer towers which were positioned. So that's the reason I think the attack fell short. But then again, you guys are the analyst, and I think you guys can mention better what exactly went wrong. So let's move to Papa Mogambo. Papa Mogambo, what do you think could have gotten a little better for him to get the 3, though this was a really good attack with a 95% 2 star? इस अटैक में सिर्फ एक ही गलती हुई, और वो एक ही गलती इतनी भारी पड़ गई क्योंकि जो एक वो गलत यूज ऑफ फ्रीज किया गया। क्योंकि देखो, जब आप अटैक कर रहे होते हो, अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हो, खासकर कि स्पेल्स का अगर गलत डिप्लॉयमेंट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपका कितने भी अच्छे प्लान को वो खराब करने का काम कर सकती है। वही गलती डेस्ट्रो से हुई। एक फ्रीज का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा लेट करा, जिसकी वजह से स्कैटर शॉट में हिट कर दिया, क्या कहते हैं, आपके उड़ने वाले पक्षियों को, उड़ने वाले पक्षी यानी कि बैट स्पेल्स को, जिसकी वजह से उनके बैट स्पेल्स की संख्या कम हो गई, और संख्या कम हो जाने की वजह से ये अटैक टाइम फेल हो गया। So moving into Sumit, what are your thoughts on the attack? सेम मैं जाना चाहूंगा यहाँ पे मोगी भाई के साथ, एंड जो उन्होंने बोला वही चीज मुझे भी लगती है। कहीं ना कहीं जो फ्रिज स्पेल की डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ा सा इन्होंने लेट कर दिया। अगर फ्रिज स्पेल थोड़ा 1 सेकंड भी जल्दी डाल देते ना, तो सारे के सारे बैट्स जिंदा रहते हैं यहाँ पे। एंड वहां पे स्कैटर शॉट एक ही ऐसा डिफेंस था जो बैट्स को हार्म कर सकता था, बाकी आर्चर टावर तो एक एक डिफेंस एक एक बैट को मारते हैं। तो जितने भी वहां पर बैट्स का बंच था, पूरे बंच के ऊपर हिट लगा एंड जो बैट्स का काउंट था वो कहीं ना कहीं कम हो गया, थोड़े से बैट्स बच गए एंड आर्चर टावर्स ने इजीली सारे के सारे बैट्स को वहां पे टेक डाउन कर लिया। अगर मुझे लगता है कि 1 सेकंड भी फ्रिज स्पेल वहां पे जल्दी डालते ना, ये अटैक 3 स्टार होने से कोई नहीं रोक सकता था। Well, I definitely agree with you on that one, Sumit. So that concludes the third attack for the day. So now let's see what EG Mythology is going to answer back with. बिल्कुल, अभी हम लोग देखेंगे इजी माइथोलॉजी की तरफ से क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि पहला अटैक साइलेंट हिल्स ने किया उनके ऊपर एंड वो 86% था। मतलब जो डिस्ट्रक्शन था वो उतना ज्यादा अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन नहीं मिली थी। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अटैक के लिए। इजी माइथोलॉजी की तरफ से हम लोगों को अटैक देखने को मिल रहा है एंड अगेन यहाँ पे हम लोग को ड्रैगन बैट के साथ अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ही ड्रैगन बैट अटैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो एक मल्टी इन्फिर्नो दिख रहा है, 2 सिंगल इन्फिर्नोज है एंड जितने भी यहाँ पे सारे के सारे एक्सपोज है वो ग्राउंड एक्सपोज है। मतलब स्ट्रेटेजी जो इन्होंने चूज करी है मोगी भाई, वो बिल्कुल परफेक्ट चूज करी है। बिल्कुल सही चूज करी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये होगी कि सीसी के अंदर इन्होंने येटी का इस्तेमाल किया होगा, जो साथ टाउन वॉल के साथ साथ सिंगल टारगेट इन्फर्नो को उड़ाने का भी काम करेंगे। अगर ये फनल और वैल्यू थोड़ी सी ड्रैगन से निकाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बेस को मार्केट में ना गद्दी बिठाने का काम कर सकती है ये आर्मी।
बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मोगी भाई, तो यहाँ पे जो स्कैटर शॉट एंड जो विजिट टावर था, जहाँ पे इन्होंने उस कंपार्टमेंट में अपना लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक स्पेल डिप्लॉय किया था, वहां से इनकी कोशिश रही होगी कि वो पूरा कंपार्टमेंट ये डाउन कर ले अपने रॉयल चैंपियन के साथ, लेकिन बट इंटरेस्टिंग अनफॉर्चुनेटली बात डाउन नहीं ये कर है पाए। कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने मुझे जिस तरह से मैं प्रिडिक्शन कर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये पीछे की तरफ से अटैक स्टार्ट करेंगे जहां पे आर्टिलरी वाला कंपार्टमेंट है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही अपोजिट तरफ से अटैक स्टार्ट किया मेरे अकॉर्डिंगली, जो कि कहीं ना कहीं अब इस अटैक को थोड़ा फंसा सकता है। क्योंकि अगर मेरे नजरिए से अगर मैं इस अटैक पे बेस के ऊपर अटैक करता तो मैं पीछे से जाता 12 o'clock की तरफ से, और कहीं ना कहीं इस बेस को आसानी से ट्रिपल किया जा सकता है। पर अभी क्योंकि इन्होंने अलग तरफ से अटैक करने का निर्णय लिया है, तो शायद ये अटैक फंस सकता है कहीं ना कहीं। बाकी तो समय बताएगा भाई मार्केट में क्या हो पाएगा। बिल्कुल, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक रेड स्पेल का इस्तेमाल किया था मोगी भाई, एंड फ्री स्पेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे खासे फ्री स्पेल्स लिए, 4 फ्री स्पेल्स का इस्तेमाल इन्होंने किया है। एंड यहाँ पे इन्होंने फ्रीज कर दिया आर्चर क्वीन को डबल फ्री स्पेल इन्होंने आर्चर क्वीन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पे आइस गोलम डिप्लॉय करके सारे के सारे बैट्स, एंड ओ माय गॉड, यहाँ पे इनका एक फ्री स्पेल गलत चला जा चुका है, मिसप्लेस हो चुका है, एंड लेकिन स्टिल सारे के सारे बैट्स अभी भी जिंदा है। लेकिन ऊपर की साइड पे एक विजिट टावर है, एंड यहाँ पे सारे के सारे बैट्स को बहुत ज्यादा ही डैमेज हुआ, एंड सारे के सारे बैट्स वहीं पे मर चुके हैं, एंड ड्रैगन्स भी अभी उतने ज्यादा जिंदा नहीं है। बेस के ऊपर बहुत सारे हेवीली डैमेज करने वाले डिफेंस बचे पीछे की साइड पे। ईगल आर्टिलरी वो एक ऐसी चीज है, बेस के ऊपर आपका ट्रुप कहीं पे भी वो अभी वो चीज डिफेंस आपकी जो बिल्डिंग्स है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। तो अभी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो अटैक हुआ है इसके बाद इजी माइथोलॉजी की आगे की स्ट्रेटेजीज क्या होगी। जैसा कि सुमित मैंने आपसे कहा था, कहीं ना कहीं इन्होंने बिल्कुल ही गलत साइड चूज कर लिया। अटैक के दौरान ही मैंने आपको बता दिया था कि इस तरफ से अटैक नहीं होना चाहिए था, है ना। और कहीं ना कहीं अब उनको इसका प्राइस चुकाना पड़ गया है, एक अटैक फेल की तरफ से, जिसकी वजह से 2 अटैक अभी तक एक भी ट्रिपल स्टार नहीं कर पाए हैं इजी माइथोलॉजी। और कहीं ना कहीं टीम भारत के पास एक बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है मार्केट में एकदम वापसी कर देने का, और ना सिर्फ वापसी कर देने का, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देने का ओपोनेंट के ऊपर के भाई उनका एकदम मार्केट में ना ध्वस्त हो जाए। मार्केट यहीं पे खत्म, बेस खत्म, मार्केट खत्म, मैच जीतो। अगर यहाँ से ट्रिपल दे देते हैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा बैकफुट में चली जाएगी अपोनेंट टीम। बिल्कुल सही बोला मोगी भाई आपने। एंड फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं ताहिर भाई की तरफ बढ़ते। ताहिर भाई का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है इस अटैक के ऊपर, एंड क्या आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है इजी माइथोलॉजी के आगे के अटैक्स के लिए? Well, for now, with this attack, right, it puts a lot of pressure on EG Mythology because they are 1 star down, and also destruction percentage that is also in the favor of Bharat. I'm pretty sure there are 3 more attacks left. They definitely have a chance of comeback. And I don't think so that we should conclude conclude anything with this, because when it comes to the big stage, you saw that he made a misplaced freeze. So that does happen to a person, because I'm pretty sure, Sumit, we've been talking throughout, because when you were performing in Superfest, there have been so many players who are really good attackers, but when it comes to the on-stage performance, it kind of they shiver a little bit because of the pressure they have from the crowd and the team, because they'll be representing their team, their country, etc. So what are your thoughts? Like, what could have been better in this attack? बिल्कुल, इस अटैक में हम लोगों ने देखा 4 फ्री स्पेल का इस्तेमाल किया था ताहिर भाई। एंड अगर आप जो बोल रहे हो कि ग्रैंड फिनाले में आई है ये टीम एंड इसी का प्रेशर हो सकता है, एंड दूसरी साइड पे अगर हम लोग बात करेंगे टीम भारत इतने सारे लीग्स खेल चुकी है, इतने सारे लीग्स जीत चुकी है, फाइनल्स में 15 स्टार्स कर चुके हैं, मतलब परफेक्ट वॉर लिटरली, लाइक फाइनल्स में आके ऐसी मैचेस खेल चुकी है। तो भारत के ऊपर तो लाइक लिटरली कोई प्रेशर नहीं है इन चीजों का। लेकिन जो इजी माइथोलॉजी क्लैन है, मैक्सिमम लोगों ने इस क्लैन को पहली बार देखा होगा एंड नाम भी पहली बार सुना होगा। तो ये लोग जो अभी फाइनल्स में आए ग्रैंड फिनाले में, तो ये जो फाइनल तक आने का इनका जो रास्ता था, जो इनकी जर्नी थी, वो बहुत मुश्किल रही है। एंड अभी फाइनल जो डेस्टिनेशन पे वो लोग पहुंच चुके हैं, एंड वो डेस्टिनेशन के सामने जो अपोनेंट खड़ा है वो कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं है, वो भी ऐसे लीग्स बहुत बार जीत के आ चुका है। तो उनको हराना उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला। तो इजी माइथोलॉजी के पास एक्सपीरियंस की कमी कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि लीग्स जीतने की एक्सपीरियंस की कमी बेसिकली। So let's also move forward to Papa Mugambo. एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सुमित, कि कहीं ना कहीं जैसे आप अगर अटैक को क्लोजली अगर यहाँ पे देखो इजी माइथोलॉजी के, तो कहीं ना कहीं उनके अटैक में मुझे नर्वसनेस नजर आ रही है, क्योंकि वो टाउन हॉल के सामने से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। वो पहले 2 स्टार को सेव करना चाह रहे हैं, उसके बाद वो 3 स्टार की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि मेरे ओपिनियन से बिल्कुल ये गलत अप्रोच है अटैक की तरफ करने की। खास करके जब आप एक प्रेशर सिचुएशन में बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो, वहां पे कभी भी आपको सेव 2 स्टार की तरफ से नहीं जाना चाहिए, चाहे अटैक कितना भी मुश्किल आपको लगे। आपको हमेशा ही अपनी टीम की तरफ से तगड़ी परफॉर्मेंस करके 3 स्टार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज आपकी टीम
टीम आपसे एक्सपेक्ट भी कर रही होती है। वहां पे अगर आप नर्वस हो जाओगे, आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम को उसका बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और सेम चीज हमको देखने को भी मिल रही है इजी माइथोलॉजी की तरफ से। बिल्कुल मोगी भाई आपने ये बात बिल्कुल सही बोली, मैं भी आपके साथ एग्री करता हूं, क्योंकि ग्रैंड फिनाले या मतलब डू और डाई की सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे। अगर आपको जीतना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो ऑफकोर्स हारना तो है ही, तो उससे अच्छा बेटर रिस्क ले लो आप, क्या पता आपका 3 स्टार हो जाए। तो ये चीज बिल्कुल सही बोली आपने, एंड शायद ये चीज माइथोलॉजी को समझनी चाहिए, क्योंकि जितने भी उनके दोनों अटैक्स हुए टाउन हॉल के सामने से, मतलब सेफ 2 स्टार वो लोग बेसिकली खेलना चाहते हैं। अगर टाउन के पीछे से अटैक करते तो पाथिंग उनको अच्छी मिल जाती, एंड में भी 3 स्टार मिल सकता था उनको, लेकिन वो चीज अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। मे भी आपने जो बोला नर्वसनेस, वो मे भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो अभी फिलहाल हम लोग देखने वाले टीम भारत की तरफ से अटैक में क्या होने वाला है, क्योंकि टीम भारत की तरफ से पहला ही अटैक 3 स्टार, दूसरा अटैक 95 भी नहीं, वो 3 स्टार ही आ जाता, लेकिन मिस फ्री स्पेल की वजह से कहीं ना कहीं वो अटैक 95% आके रह गया। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आगे के जो 3 अटैक्स बचे भारत की तरफ से उसमें क्या होता है। एंड परमाणु आ चुके हैं, परमाणु बम लेके अटैक के लिए। अभी देखते हैं ये कौन से आर्मी के साथ अटैक करते हैं इस बेस के ऊपर। जैप ड्रैगन्स के साथ शुरुआत करी है परमाणु ने। परमाणु विस्फोट करना चाहते हैं इजी माइथोलॉजी के ऊपर, लेकिन क्या विस्फोट कर पाएंगे ये बताएगा समय, और साथ में बताएंगे हम। टेंशन वाली बात बिल्कुल कोई नहीं है। कोर को खाली करने की कोशिश की जा रही है। भाई किस तरीके का अटैक है ये अभी तक हमारे को समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, लेकिन अभी देखो जैसे जैसे बंदा ट्रूप्स उतारने शुरू करेगा तो अटैक थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट होगा। एक तरफ से बेबी ड्रैगन डाल करके फनल बनाई गई है ड्रैगन्स के लिए, बहुत बढ़िया बैटल ब्लिम का यहाँ से इस्तेमाल किया जाएगा टाउन हॉल को टेक डाउन करने के लिए। लेकिन बैक एंड पे काफी ज्यादा मेरे ख्याल से स्कैटर शॉट और जो रॉयल चैंपियन वाला कंपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम हो सकता है इस अटैक पे। मोगी भाई अगर हम लोग इस बेस के ऊपर देखेंगे अटैक अच्छे से, तो इन्होंने कोई फनल वगैरह बनाया ही नहीं है ड्रैगन्स की। लाइक लिटरली मोगी भाई यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ड्रैगन्स लिटरली स्प्रेड हो रहे हैं, आधे आधे लेफ्ट में जा रहे हैं, आधे राइट में जा रहे हैं, आधे बीच में जा रहे हैं। पीछे की साइड पे इन्होंने डाला है अपने हीरोज को, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं क्लीनअप का। लेकिन ड्रैगन्स इन्होंने पाथिंग कोई बनाई नहीं है इन्होंने ड्रैगन्स के लिए, पूरा स्पैम कर दिया। एंड ऊपर की साइड पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक स्कैटर एंड एक एयर डिफेंस है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने का काम कर सकता है। लेकिन हीरोज अभी भी इनके पास है, तो देख के लग रहा है कि 3 स्टार होने की पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि बेस के ऊपर ज्यादा डिफेंसेस है नहीं, कुछ चंद डिफेंसेस गिने चुने बचे, लेकिन वही बहुत ज्यादा डैमेज करने वाले हैं। बिल्कुल सुमित, पाथिंग इन्होंने एक्चुअली बनाई थी, लेकिन जो इन्होंने स्टार्टिंग में अटैक के स्टार्टिंग में जो इन्होंने लाइटनिंग का यूज करा, उससे बीच वाला कंपार्टमेंट पूरा खाली हो गया था। तो ड्रैगन्स के पास फिर स्क्रेड होने के सिवा कोई और ऑप्शन उनके पास बचा ही नहीं था। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके अटैक का प्लान का हिस्सा रहा होगा। जिस तरीके से अभी अटैक आगे मार्केट की तरफ बढ़ रहा है, स्कैटर फोर्ट को फिनिश कर दिया गया, और अब इस बेस का बचना बिल्कुल ही बिल्कुल लगभग नामुमकिन लग रहा है। और नामुमकिन नहीं भाई, ये बेस हो गया मार्केट में एकदम ध्वस्त, गड्डी बैठ गई एकदम इसकी। और एक और अटैक 3 स्टार आता हुआ टीम भारत की तरफ से एकदम बैकफुट पे धकेल देगा इजी माइथोलॉजी को। बिल्कुल, इजी माइथोलॉजी को इतना बैकफुट पे धकेला गया है टीम भारत की तरफ से कि अभी यहां से उठना इनको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो 2 में से 3 अटैक 3 स्टार यहां पे भारत ने किया है, एंड एक अटैक 95% हो चुका है। एंड जो टोटल डिस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का डिस्ट्रक्शन 98.3% का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। एंड वहीं पे अगर हम लोग दूसरी साइड पे देखेंगे सिर्फ 82% का यहाँ पे इजी माइथोलॉजी का डिस्ट्रक्शन है। तो अभी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इजी माइथोलॉजी की तरफ से अगले अटैक में होता क्या है, क्योंकि उनके जो भी पहले दोनों अटैक्स थे वो लो परसेंटेज के साथ खत्म हुआ है, मतलब दोनों अटैक उनके मैसअप हो चुके हैं। तो अभी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इजी माइथोलॉजी क्या रिस्क के साथ अटैक करेगी, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन तो वैसे भी उनके लिए क्रिएट हो ही चुकी है। तो क्या वो लोग 3 स्टार के लिए जाएंगे या फिर स्टिल अभी भी सेफ 2 स्टार के लिए खेलेंगे, वो चीज देखनी पड़ेगी। ताहिर भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में? A really interesting attack, because I like when you look at the resume coming in from Parmanu, right? He's a really big fan of playing clone drag as well. So this attack, you say when in the starting of the attack, you just said they just spammed everything, and this looks like a really risky attack because there was no pathing towards the center where they could have got down those key defenses. But still, this attack turned out to be a 2 star because I think that's the type of attack he planned throughout. Malab, they had a really well planned attack where he would spam all of his troops according in the certain pathway where it would lead towards the 3 star. And I think that was a really good part. And we should also take in Papa Mugambo's take on this. Papa Mugambo, what do you think? What do you think of this attack? Because it was a really good 3 star attack. मोगी भाई आपका माइक बंद है फिलहाल। एंड ताहिर भाई जो आपने चीज बोली बिल्कुल सही बात बोली आपने। माइक हो गया चालू सुमित। तो समझने वाली बात ये थी कि जो अटैक की स्टार्टिंग में जो इन्होंने प्लान किया था बीच का कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं लाइटरिंग से ले लेने का,
और उसकी वजह से जो बाद में जो स्प्रेड हुए, जो ड्रैगन जो स्प्रेड हुए, वो कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचाने की जगह, अटैक को नुकसान पहुंचाने की जगह अटैक को फायदा पहुंचाया उन्होंने ड्रैगन को स्प्रेड होने की वजह से। क्योंकि जो इस तरीके से जो पाथिंग क्रिएट हुई ड्रैगन की, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया क्रिएट हुई, और जिसकी वजह से बहुत इजीली, आई थिंक मेरे ख्याल से 2 मिनट के अंदर ये अटैक 3 स्टार हो गया था। 1 मिनट और बचा हुआ था शायद, और इस तरह के कुछ मतलब कंटिन्यू। बिल्कुल, पहले 2 मिनट के अंदर इन्होंने इस बेस को 3 स्टार किया था। स्टार्टिंग में जो उन्होंने लाइटनिंग स्पेल का इस्तेमाल किया था पूरा कोर डाउन करने के लिए, क्योंकि वो पूरा कोर ही एक मेन ऐसी की डिफेंस वाली चीज थी इस बेस के अंदर की जो पूरे अटैक का नक्शा चेंज कर सकती थी। तो उन्होंने उसको ही उखाड़ के फेंक दिया, तो लाइक दूसरी चीजें उनको उनके पास बची नहीं थी, तो इजीली स्प्रेड होने के बावजूद उनका अटैक 3 स्टार हो गया। एंड जो रहा सहा काम बचा था वो रॉयल चैंपियन ने कंप्लीट कर दिया। Like, I definitely agree with you there, Sumit, because he utilized those lightnings and those earthquakes to take down the key compartments of the base, and that pretty much secured the 3 star here. So I think with this, we should proceed to the next attack, and let's see what EG Mythology is going to answer with now. बिल्कुल, इजी माइथोलॉजी की तरफ से देखना पड़ेगा हमले में अभी जवाबी हमला जो होता है उनकी तरफ से क्या होता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ही बैकफुट पे जा चुका है एंड अटैक स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे इजी माइथोलॉजी की तरफ से। एंड अगर हम लोग इस स्ट्रेटजी में देखेंगे तो हाइब्रिड आर्मी के साथ आ चुके हैं, बहुत ज्यादा ही प्रॉमिसिंग आर्मी है क्लैश ऑफ क्लैंस की। लाइक लिटरली अगर 10 लोग टाउन हॉल 30 पे अटैक करते तो उनमें से 5 लोग इस स्ट्रेटजी के साथ अटैक करते हैं, मतलब इतनी प्रॉमिसिंग आर्मी है। तो अभी हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि क्या हाइब्रिड आर्मी के साथ इनके चांसेस बनेंगे 3 स्टार के, क्योंकि पहले ही इनके 2 अटैक्स फेल हो चुके हैं, लाइक 2-2 स्टार अटैक आ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने सुपर वॉल ब्रेकर डिप्लॉय करके वॉल ब्रेक करी है मोगी भाई। एंड जो पाथिंग मोगी भाई इन्होंने क्रिएट करी है, क्या लगता है क्या बिल्कुल सही पाथिंग बनाई है या फिर कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है? पाथिंग कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन जो ये स्कैटर शॉट वाला कंपार्टमेंट है, जब यहाँ पे आपकी क्वीन एंटर करेगी उसके बाद क्वीन को रास्ता ज्यादा मिलेगा नहीं और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। वहां पे एक और इनको सुपर वॉल ब्रेकर का इस्तेमाल करना होगा। अगर सुपर वॉल ब्रेकर का इस्तेमाल सही तरह से कर पाते हैं और क्वीन अंदर तक चली जाती है तो शायद टाउन हॉल को ले पाएगी, और टाउन हॉल लेने के बाद कहीं ना कहीं शायद ये सीसी को भी ले पाएगी। अगर सीसी तक, अगर क्वीन सीसी तक टेक डाउन कर देती है तो कहीं ना कहीं इस बेस का मार्केट में बच पाना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखने वाली बात होगी कि क्वीन तब तक अपनी एबिलिटी को बचा पाएगी या कितने स्पेल से अपने पास सेव रख पाएंगे बैक एंड के लिए। आइए चलो देखते हैं। सुमित, So as you can see, the queen walk from EG Mythology is doing wonders here, because he pretty much took down the town hall as well using that queen walk. Queen's ability has been popped. There was a rage as well used there, and this queen is working wonders. So Clan Castle does have the brand new ice hound there, and I think with this we have Sumit back on the line. बिल्कुल, Sumit, can you hear me? बिल्कुल ताहिर भाई, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो मोगी भाई बात कर रहे थे, यहाँ पे सीसी भी डाउन हो जाएगी अगर वो वाली वॉल फोड़ लेते हैं, एंड टाउन हॉल भी डाउन हो जाएगा। एंड क्वीन ने अपना वो जो काम था वो करके दिखाया। एंड अगर हम लोग इनके हाइब्रिड आर्मी की तरफ देखेंगे तो इतने ज्यादा अमाउंट में, मास अमाउंट में माइनर्स एंड वहां पे हॉग राइडर्स है कि मुझे नहीं लगता कि इस बेस को अभी कोई भी बचा सकता है। एक फ्री स्पेल हालांकि इनके पास बचा है, लेकिन स्टिल रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी है। बंच देखो यार, यहाँ पे हॉग राइडर्स का लगभग 1-2 दर्जन के आसपास हॉग राइडर्स यहाँ पे अभी भी जिंदा है। एंड फाइनली यहाँ पे ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी इन्होंने स्टार्टिंग में पॉप कर दी थी। रॉयल चैंपियन यहाँ पे टेक डाउन कर लिया है सिंगल इन्फिर्नो को, एंड हिलर जो है वो रॉयल चैंपियन को हिल करने का काम कर दिया। तो फाइनली पहले अटैक इजी माइथोलॉजी की तरफ से 3 स्टार आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल सुमित, सही कहा आपने, लेकिन 3 स्टार मारने के बाद भी अभी भी 1 स्टार पीछे है इजी माइथोलॉजी। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज्यादा दबाव ये महसूस कर रहे होंगे कि अभी भी हम लोग 1 स्टार पीछे हैं, साथ ही साथ ये डिस्ट्रक्शन में भी पीछे हैं। अगर यहाँ से टीम भारत एक अटैक और ट्रिपल मार देता है तो बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इजी माइथोलॉजी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली मोगी भाई, अगर एक और 3 स्टार अटैक एंड वो नॉकआउट पन साबित हो सकता है यहाँ पे इजी माइथोलॉजी के लिए, क्योंकि पहले ही उनके 2 अटैक्स फेल हो चुके हैं एंड भारत ने सिर्फ एक ही अटैक फेल किया है एंड 2 अटैक उन्होंने 3 स्टार किया है। तो अभी भारत की तरफ से जो जवाबी हमला होता है वो देखना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा मैच टर्निंग पॉइंट रहेगा इस पूरे वॉर का एंड लीग का। तो वो देखना पड़ेगा उस अटैक में क्या होता है। So this was a really good answer coming in from EG Mythology, because I'm always a huge fan of Queen Walks. Queen Walks are really interesting, and what Berserker did here was really interesting because he created a clear pathway for the Queen to go to the center of the base and cause havoc there. And he did a really good job in the process as well. She pretty much took down the town hall. She took down the CC as well, and that I think that pretty much
gave him the 3-star because as Sumit was saying, Sumit, you said that hybrid is a really reliable strategy to use in wars. And I think Berserker does know that because that's his favorite type of attack as well. Like, what are your thoughts? Like, throughout the attack, what went so well for Berserker that he secured the first 3-star for his team? ताहिर भाई, इस अटैक में मोगी भाई ने जो पॉइंट क्लियर किया था एकदम स्टार्टिंग में, वो चीज होने से पहले ही मोगी भाई ने यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लिया था कि अगर क्वीन यहाँ पे टाउन हॉल ले लेती है एंड सीसी ले लेती है तो इनके लिए जो रास्ता है हाइब्रिड का वो इजी हो जाएगा। एंड अभी फिलहाल उनके ऊपर ही अटैक हो रहा है एमडब्ल्यूसी की तरफ से, तो वो देखना पड़ेगा उनके ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ अटैक हो रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो पेक्का विच के साथ अटैक हम लोग को देखने को मिल रहा है। मोगी भाई क्या लगता है, ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है इस बेस के लिए? बिल्कुल, चाइनीज आर्मी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, जो कि चाइनीज के टॉप प्लेयर बहुत ज्यादा इस आर्मी को यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इस आर्मी को मास्टर कर सकते हो तो ये एक ऐसी आर्मी है जो भाई दुनिया के अंदर आप ऐसा कोई बेस नहीं बना सकते जो इस बेस को, मतलब जो इस आर्मी को डिफेंड कर सके। ऐसा कोई बेस है ही नहीं मार्केट में। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, आपको इस आर्मी के ऊपर कितनी पकड़ है। अगर आपकी इस आर्मी के ऊपर पकड़ जबरदस्त है तो यकीनन किसी भी बेस की आर्मी गदी बिठाने का दम रखती है। आइए देखने वाली बात होगी, यहाँ से ग्रैंड वार्डन के साथ शुरुआत करी है, स्टार्टिंग फनल काफी अच्छी बनाई जा रही है। लेकिन इस अटैक में एक चीज और देखने वाली बात होती है, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम ग्रैंड वार्डन के साथ बिता दोगे तो बाकी आर्मी के लिए बहुत, क्योंकि पैकअप बहुत स्लो होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अटैक फिर टाइम फेल की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ से जल्दी जल्दी इनको अटैक की अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी और बेस को जल्दी से उखाड़ना होगा। बिल्कुल मोगी भाई, आपने एक बात नोटिस करी, क्योंकि हम लोग ये स्ट्रेटजी पहले उतना देखा नहीं करते थे, क्योंकि जब से पेक्का का न्यू लेवल आ चुका है लेवल 9, तब से ही इस आर्मी का इस्तेमाल हम लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड इससे पहले येटीज का इस्तेमाल करते थे ये चाइनीज आर्मी में। एंड फिलहाल अभी पेक्कास का इस्तेमाल किया है क्योंकि उसका हिट पॉइंट बढ़ चुका है, उसका डैमेज पर सेकंड बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज ज्यादा देता है। हालांकि उसका जो हाउसिंग स्पेस है वो येटी से ज्यादा है, लेकिन स्टिल जो वैल्यू वो प्रोवाइड करता है वो वर्थ इट रहती है यहाँ पे। एंड सीसी इन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी सीज बैरक के अंदर से कुछ ट्रूप्स, बहुत सारे विजर्ड्स यहाँ पे हॉगरेड्स आ चुके हैं। बुरी बात यहाँ पे ये है कि टाउन हॉल अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं है एंड सारे के सारे हॉक्स यहाँ पे टाउन के पास चले जा चुके हैं। यहाँ पे 2 विचेस टाउन हॉल को टारगेट करने का काम कर रही है। रेड स्पेल उन्होंने वहां पे डिप्लॉय कर दी टाउन के ऊपर, फ्रीज स्पेल इन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है। स्टिल मोगी भाई इनके पास अभी भी रॉयल चैंपियन बची है एंड ऊपर से अगर हम लोग बेस देखेंगे तो ऊपर एक सिंगल इन्फर्नो भी बचा है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है हीरोज को बाद में। बिल्कुल सुमित, लेकिन यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी ट्रिगर्ड हो चुकी है, वार्डन किंग की एबिलिटी बची हुई है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बची हुई है, लेकिन इनके पास कोई भी फ्रीज स्पेल नहीं बचा हुआ और बैक एंड पे एक सिंगल टारगेट इन्फर्नो बचा हुआ है। लेकिन ये जो बलून्स का जो गुच्छा सा जो निकल कर आ रहा है, मुझे लग रहा है इस बेस की मार्केट में ध्वस्त करने का काम कर सकता है और मुझे लग रहा है कि आसानी से अटैक ट्रिपल हो जाएगा। अगर जस्ट एबिलिटी वैसे काफी बची है भाई, अटैक ट्रिपल हो ही जाएगा, बचेगा ही नहीं अटैक ये बेस। बिल्कुल बिल्कुल मोगी भाई, आपने सही बोला, बहुत पावरफुल आर्मी है। एंड अगर हम लोग बेस के ऊपर देखेंगे मोगी भाई, 4 के 4 पेकास अभी भी जिंदा है, लाइक लिटरली चारों की चारों पेकास जिंदा है। विचेस के जो स्केलेटन्स है वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में जिंदा है। रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी भी बची है, तो आराम से यहाँ पे एमडब्ल्यूसी ने इजीली इस बेस के ऊपर 3 स्टार कर दिया है। स्टिल यहाँ पे किंग की एबिलिटी बची थी एंड 30 सेकंड रहते ही ये वाला अटैक 3 स्टार हो चुका है। एंड जिस नॉकआउट पंच की हम लोग बात कर रहे थे मोगी भाई कि एक 3 स्टार अटैक भारत की तरफ से पूरा काम खत्म कर सकता है यहाँ पे इजी माइथोलॉजी का, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल सुमित, और यहाँ पे क्योंकि भारत ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन में आ गया है, अगर यहाँ से अभी इजी माइथोलॉजी दोनों अटैक 3 स्टार मारता है और भारत अगला अटैक सिर्फ 2 स्टार हाई परसेंटेज भी करता है, तो भारत बहुत आसानी से इस वॉर में अपनी जीत पक्की कर सकता है। इजी माइथोलॉजी के पास बहुत कम ऑप्शन सब बचे हुए हैं इस मैच के अंदर अपनी वापसी करने के लिए, लेकिन क्या यहाँ से वापसी कर पाएंगे ये बताएगा समय ही। बिल्कुल ताहिर भाई, आपको क्या लगता है, क्या अभी इजी माइथोलॉजी के कुछ जीतने के चांसेस होंगे? Well, I think it's a really hard call for now to say, because it's not just you performing well in your next 2 attacks, your opponent also needs to like do bad in their attack, and that happens very rarely, because Bharat so far their performance has been really good, and that just put a lot of pressure on EG Mythology, because their first attack was a 3 star, and coming back to this attack, this was a really interesting attack, man. The pathing was incredible and the Packers just went in and destroyed everything, because I saw he could have swagged his like grand champion's ability. That's something really interesting, because that attack went really well. The funneling, the pathing, everything was on point. I think that's the reason a player can swag the army he has. Like Sumit, like what are your takes? What do you think we can take out of this attack? बिल्कुल, ये अटैक स्टार्टिंग में देख के लग रहा था कि कहीं ना कहीं टाइम की कमी की वजह से फेल हो रहा है। मोगी भाई ने बोला था कि ग्रैंड वार्डन के साथ आप जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना ही ज्यादा हम लोगों को कहीं ना कहीं टाइम कम होते हुए नजर आएगा। एंड पेक्कास वैसे भी स्लो होते हैं, लाइक एक एक डिफेंस को एक एक बार में टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके इनका जो अटैक था वो इन्होंने इतना फास्ट कर लिया कि इजिली इन्होंने 3 स्टार कर लिया था। विचेस भी इनके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, तो विचेस ने भी बहुत अच्छा खासा उन्होंने काम किया।
बिल्कुल सुमित, सही कहा आपने, लेकिन पैक्का के साथ अटैक करने का एक बेनिफिट आपको ये होता है, जो स्प्रिंग ट्रैप होते हैं, जो येटीज के ऊपर वर्क करते हैं, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाते हैं पैक्का के ऊपर, तो बिल्कुल स्प्रिंग ट्रैप को यूजलेस कर देते हैं पैक्का। इसीलिए ये आर्मी इतनी ज्यादा और ज्यादा ओवर पावरफुल हो गई है। और भाई लिटरली डैमेज और हिट पॉइंट तो इतना इनका बढ़ गया है, जैसे भाई ये बिल्कुल अमर हो गए हैं मार्केट में। मतलब कोई डिफेंस, जब तक सिंगल टारगेट इन्फर्नो इनको नहीं पकड़ेगा, तब तक भाई पैक्का एकदम अमर होकर घूमेंगे पूरे बेस पे, ऐसे घूमेंगे जैसे भाई अपने फूफा के घर आ रखे हो। I agree. The pathing was made in such a way that those Pekkas were really protected. And I think we should move forward with the next attack. It's going to be from Bharat. And let's see what Bharat has in store. Because pretty much until now, Bharat has been in the lead. And EG Mythology needs to go ahead and answer with their attack now. My bad. The attack is from EG Mythology. बिल्कुल यूजी मैथोलॉजी आज एंड अगेन आपने जो बोला था ताहिर भाई कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल आर्मी है, एक्चुअली सबको पता है, मोगी भाई ने भी बोला है। एंड ऑफ कोर्स उसी आर्मी के साथ उनको रिजल्ट मिल चुका है पिछले अटैक में, तो वापस उसी आर्मी के साथ हम लोगों को अटैक होते हुए नजर आ रहा है। हाइब्रिड आर्मी के साथ एक और अटैक 12 o'clock से इन्होंने क्विंचा स्टार्ट किया है। सामने इनको टेस्ला फार्म मिल चुका है, डबल बलून डिप्लॉय कर दिया कोको लून, ताकि कोई भी वहां पे सीकिंग एयर माइन होगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा। सीसी अभी तक अच्छे से लूर हुई नहीं है। सिंगल इन्फिर्नो यहाँ पे टारगेट करना स्टार्ट कर चुका है आर्चर क्वीन को। फ्रिज पेल वहां पे डिप्लॉय कर दी। क्या देखना पड़ेगा, आर्चर क्वीन कोर में आएगी, क्या टाउन हॉल को ले पाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे कोर में आने का काम किया है आर्चर क्वीन ने। मोगी भाई क्या लगता है, क्या ये भी अटैक 3 स्टार होगा क्या? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है टाउन हॉल और सीसी की वजह से क्वीन के लिए यहाँ से, और साथ ही साथ दो जो ये आपके देखो फ्रीज खत्म हो चुकी है। देखने वाली बात, अभी तक टाउन हॉल एक्टिवेट नहीं हुआ, क्वीन की एबिलिटी ट्रिगर हो चुकी है, और सीसी अभी तक पूरी तरीके से टेक डाउन नहीं हुआ, और दो क्या कहते हैं आपको, इनको एक्सपो क्वीन को लगातार हिट करने में लगी हुई है, और यहाँ पे रोस्ट करना शुरू कर दिया बिल्कुल। टाउन हॉल ने ऑलमोस्ट मार दिया है हीलर्स को, लेकिन हीलर्स किसी तरीके से सर्वाइव कर गए, क्वीन भी किसी तरीके से सर्वाइव कर गए। यहाँ तक बिल्कुल ही लक एकदम बिल्कुल साथ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये अटैक थोड़ा गड़बड़ाते हुए अब सही दिशा में बढ़ने की तरफ जा रहा है। बिल्कुल गड़बड़ जो कर रहा था स्टार्टिंग में, अभी सही दिशा में जाते हुए नजर आ रहा है। एंड मोगी भाई यहाँ पे अच्छी बात ये हो चुकी है इस अटैक में कि पूरा जो हाइब्रिड है कोर में है। एंड पीछे की साइड पे अगर हम लोग देखेंगे, बारबेरियन किंग, पेक्का एंड सीसी के जो ट्रुप्स है वो फनलिंग का एकदम मस्त काम कर रहे हैं। आर्चर क्वीन ने अपनी एबिलिटी का वजह, एक्चुअली मरी चुकी है आर्चर क्वीन यहाँ पे, स्टिल एक हील स्पेल इनके पास बची है। नीचे की साइड पे हम लोग देखेंगे बारबेरियन किंग है एनिमी का, एंड इनके पास एक हेड हंटर अभी भी बचा है, एंड स्कैटर शॉट भी है, जो स्कैटर शॉट बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन रॉयल चैंपियन है तो कोई भी इस बेस के ऊपर सिंगल इन्फर्नो बचा नहीं है, तो 3 स्टार होने के चांसेस भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही नजर आ रहे हैं इस बेस के ऊपर। 3 स्टार के चांसेस नजर नहीं, बिल्कुल सुमित, ये 3 स्टार ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसे कि बस यहाँ पे स्कैटर शॉट के उड़ते के साथ ही इस बेस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस रॉयल चैंपियन की एबिलिटी वाली शील्ड, जब ये शील्ड फेंक के मारेगी ना भाई, तो कोने कोने में उड़ती हुई जाएगी शील्ड एकदम, मतलब दूर दूर तक जो डिफेंस रखे हुए ना सबको उड़ाती हुई निकल जाएगी, और भाई इस बेस का ना ध्वस्त करने का काम कर सकती है ये शील्ड। पर माइनर्स क्योंकि होग राइडर्स कम हो गए हैं और थोड़ा सा अभी शायद खतरे में आ सकता है ये, आपको क्या लगता है? लेकिन टाइम फेल हो सकता है, देखो अटैक फेल नहीं हो सकता, सिर्फ ये मेरे ख्याल से सिर्फ टाइम फेल हो सकता है। मोगी भाई टाइम भी अगर हम लोग देखेंगे तो टाइम स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा ही टाइम हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड बिल्कुल स्टिल पेक्का है यहाँ पे, कुछ विजर्ड्स है, माइनर्स है, एंड ग्रैंड वार्डन अपनी फुल हेल्थ के साथ है। ग्रैंड वार्डन अकेला ही यहाँ से इस बेस को पूरा टेक डाउन कर सकता है, किसी चीज की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, ग्रैंड वार्डन अकेला अपनी छड़ी से ही तोड़ देगा पूरे बेस को भाई। बिल्कुल, अपनी वो छड़ी जो होती है बहुत अच्छी खासी रेंज होती है, बहुत दूर दूर तक मारता है। एंड जो बिल्कुल इसका नया एनिमेशन आया इसमें तो बिल्कुल ऐसा लगता है भाई जैसे गोली सी मार रहा हो। बिल्कुल यहाँ पे एक गोली टाइप का मारता है, उसके हाथ में कुछ होता है। एंड फाइनली यहाँ पे इजी माइथोलॉजी ने अगेन अपना दूसरा अटैक जो है वो भी हाइब्रिड आर्मी के साथ इन्होंने 3 स्टार करके दिखाया है। एंड अभी स्कोर जो है लिटरली यहाँ पे भारत 1 स्टार से आगे हम लोगों को नजर तो आ रहा है, लेकिन स्टिल इजी माइथोलॉजी उनके पीछे पीछे, ये भारत की एक गलती यहाँ पे इजी माइथोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा पहुंचा सकती है। तो मुझे नहीं लगता भारत यहाँ पे कोई भी रिस्क लेना चाहेगा 3 स्टार के लिए। सिर्फ 2 स्टार हाई परसेंटेज भी अगर भारत कर लेता है तो भी यहाँ पे भारत इजीली जीत जाएगा। लेकिन इजी माइथोलॉजी का देखना पड़ेगा, क्या इजी माइथोलॉजी अपना आखिरी अटैक 3 स्टार कर पाएगी तारिफ भाई? Well, it completely depends on the pressure. But for now, coming to the attack, Schneider really knew what he was doing. Because in the start, that Queen Walk was facing so many difficulties, and those healers barely survived. If by any chance those healers would have been taken down, the town hall would have survived, and this attack would have been a disaster. But fortunately for him, as Papa Mugambo Bhai was saying, luck came in at the right time, and he was able to take the town hall down. So I think that 3 star was really amazing, and I really like the attack because of the
the luck factor coming in, Sumit. Like, जो luck factor इस attack में था, that was really interesting. So for now, I would move on to Papa Mugambo. What are your thoughts on the attack? सबसे इम्पोर्टेंट Oh, I'm sorry. I think we are in with the, yes, we are already in. स्टार्ट हो चुका है। रॉयल अर्जुन की तरफ से मार्केट में कूद चुके हैं इलेक्ट्रो आर्मी लेकर के, और साथ ही साथ लेकर आए हैं 2 लाइटनिंग स्पेल भी, जिनसे इन्होंने तोड़ दिया है एयर स्वीपर को, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। और मेरे हिसाब से जिस तरह से इलेक्ट्रो ड्रैगन की मुझे नॉलेज है, उस हिसाब से बिल्कुल सही तरफ से इन्होंने अटैक की शुरुआत करी है। बिल्कुल इसी जगह से यहाँ पे इस बेस के ऊपर अटैक होना चाहिए था। और मुझे लगता है अगर सीसी के अंदर देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर सीसी के अंदर लावा नहीं होता है तो इस अटैक के 3 स्टार होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे सही बोला आपने। एंड सीसी के अंदर अगर हम लोग मूवी में देखेंगे तो कचरा सीसी बाहर निकल चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को। लेकिन स्टिल पॉइजन स्पेल की डिप्लॉयमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी, पूरी सीसी यहाँ पे मर चुकी है एंड स्टिल हीरोज अभी भी इनके पास जिंदा है। बारबेरियन किंग को इन्होंने डिप्लॉय एबिलिटी यूज कर लिया, आजर की उनके पास अभी भी एबिलिटी है। एंड मोगी भाई, मुझे अब नहीं लगता कि टीम भारत को ट्रॉफी घर ले जाने से कोई भी यहाँ पे रोक सकता है। जी हाँ सुमित, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सीसी के अंदर चाहे कुछ भी हो, सीसी के अंदर चाहे अपोनेंट खुद बैठा हो, लावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे को अटैक से पहले पता था, जिस तरह से इन्होंने अटैक चालू करा था, कि ये लोग सीसी के अंदर येटी यूज करने वाले, और जब येटी यूज करते हैं तो जिसकी वजह से लावा बाहर निकल जाता है, और लावा बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रो ड्रैगन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर लावा नहीं है, उसके बाद आप सीसी में कुछ भी रख लो, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रो को रोक पाएगी। अगर आपने पासिंग सही से क्रिएट करी है, आप स्पेल्स का इस्तेमाल ठीक से कर रहे हो। और यहाँ पे इस अटैक में देखने वाली बात है, किंग की एबिलिटी बची थी, की एबिलिटी बची थी, रॉयल चैंपियन भी बची हुई थी, इतने सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन भी बचे हुए थे। और इसी के साथ भाई एकदम स्टेफनी कप में ना टीम भारत ने झंडा गाड़ दिया 3 स्टार मार के एक और। बिल्कुल मोगी भाई, बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ पे जो एक अटैक 95% हुआ था भारत की तरफ से, वो भी 3 स्टार ही होने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं 1 सेकंड की कमी या फिर 1 सेकंड का गैप हम लोग बोल सकते हैं, जो फ्री स्पेल की डिप्लॉयमेंट गलत थी, नहीं तो परफेक्ट वॉर हम लोगों को इस लीग में देखने को मिलती, वो भी ग्रैंड फिनाले में। अभी इजी माइथोलॉजी तो हार ही चुका है लिटरली, अगर 3 स्टार भी कर लेता है तो भी उनका 1 स्टार कम रह जाएगा एंड वो लोग हार जाएंगे। लेकिन स्टिल हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या इजी माइथोलॉजी आखिरी अटैक में भी, मतलब हारने के बाद भी, क्या वो लोग 3 स्टार कर पाएंगे? अगर करेंगे तो कौन से आर्मी के साथ करेंगे, क्या लगता है? Well, with this, I think with this attack, the last nail on the coffin has been already put in. Yes. So the last nail on the coffin has already been nailed. Bharat pretty much securing the victory here, but then again, we still have one attack left from EG Mythology, and I think we should proceed towards that attack before announcing anything, because I would really like to see what EG Mythology would do at a situation like this. Like, the pressure is on, like it is up to the last attack, but the conclusion has already been given here, Sumit. The winner has been decided, unfortunately, due to the really good performance of Team Bharat. बिल्कुल सही बात बोली आपने। I'm sorry to interrupt you too. I interrupted Papa Mugambo first, so Papa Mugambo, please continue. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इंटरप्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखो, मैं वापस से एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये जो टूर्नामेंट था, ये था भाई ग्लोबल टूर्नामेंट यानी कि लोकल टूर्नामेंट नहीं था, सिर्फ इंडिया की टीम नहीं थी, वर्ल्ड के हर एक कोने से इस टूर्नामेंट के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, बड़ी से बड़ी टीमों के अंदर ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। इवन वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिनको भाई जितने भी सीओसी के बड़े से बड़े प्लेयर होंगे वो सभी जानते होंगे। क्वीन वॉकर्स हो, चाहे नीसेंट डांस हो, चाहे एमकेएम हो, चाहे टीम बांग्लादेश हो, चाहे आपकी मतलब बहुत सारी जो जितनी मेरे को कुछ टीमों के नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट टॉपमोस्ट टीमों ने वर्ल्ड की इसमें पार्टिसिपेट करा था। उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेमीफाइनल तक जो 4 टीमें पहुंची, उन 4 टीमों में से 3 टीम हमारी इंडिया की थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट किलर, टीम भारत और आपकी मार्कोस गेमिंग, यानी कि टीम मतलब इंडिया की तरफ से जो टीम थी उनका परफॉर्मेंस एकदम डोमिनेटिंग रहा भाई थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, और बहुत बड़ी बड़ी टीम को बाहर निकाल दिया हमारी इंडियन की टीम ने, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट की बात है इंडिया वालों के लिए। बिल्कुल सही बात बोली। टॉप 4 में से 3 टीम्स हमारी इंडिया की टीम थी, जो कि बहुत प्राउड मूवमेंट है हम सभी लोगों के लिए। एंड अभी फिलहाल ग्रैंड फिनाले भी टीम इंडिया मतलब हमारी भारत टीम जीतते हुए नजर आ रही है। ऑफकोर्स जीत चुकी है एंड यहाँ पे फिलहाल आखिरी जो अटैक बचा है ईजी माइथोलॉजी की तरफ से, वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वीन चार्ज लावालून के साथ इन्होंने अटैक स्टार्ट किया, डबल फ्री स्पेल का इस्तेमाल किया इन्होंने यहाँ पे टाउन हॉल के ऊपर एंड एक्सपो के ऊपर। अच्छी खासी वैल्यू निकाल तो लिया अपने क्वीन के साथ, बैटल ब्लिम के साथ, लेकिन जो हेवी डैमेज करने वाले डिफेंसेस अभी भी इस बेस के ऊपर हम लोग नजर आ रहे हैं। जैसे कि पीछे की साइड पे देखेंगे तो 2 कंपार्टमेंट्स में, अलग अलग कंपार्टमेंट में 2-2 स्कैटर शॉट्स हैं,
ईगल आर्टिलरी वाला जो अकेला कंपार्टमेंट है वो अपने आप में खतरनाक कंपार्टमेंट हम लोगों को नजर आ रहा है। क्वीन के पास अभी भी एबिलिटी बची है, एक फ्रिज स्पेल अभी भी इनके पास है, एंड वो फ्रिज स्पेल बिल्कुल सही जगह पे इन्होंने सही टाइम पे इस्तेमाल किया एंड सिंगल इन्फर्नो को फ्रीज कर दिया। आखिरी जो सेकंड लास्ट इनकी रेड स्पेल थी वो भी इन्होंने डिप्लॉय कर दी। एंड बेस देखेंगे मोगी भाई तो लगभग 40 से 45% की वैल्यू इन्होंने अपने क्वीन किंग एंड अपने बैटल ब्लिम के साथ निकाली है, एंड अभी लावा लून इन्होंने कर दिया है स्टार्ट। सुमित, अगर आप मुझसे अगर पूछें कि मोगी भाई जीवन में अगर ऐसी कौन सी आर्मी है जो आप कभी यूज नहीं करना चाहेंगे, तो मेरा जवाब होगा क्वीन चार्ज लावा लून। ठीक है भाई, अगर आप एक्सपर्ट से पूछे, मतलब जितने भी आप खुद भी आप कभी एक्सपीरियंस करेंगे, जब भी आप क्वीन चार्ज लावा लून करेंगे, दुनिया की सबसे मुश्किल आर्मी में से ये एक आर्मी है। इसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। आप बहुत ज्यादा वैल्यू निकाल लो क्वीन के साथ, उसके बाद भी ये अटैक आपका फेल हो जाता है कई बार, और कई बार इतना आसानी से बेस ऐसे तोड़ देता है कि आपको लगता है दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी यही है। तो उस तरह की आर्मी है। देखिए जैसा कि अभी आपको दिख रहा है सिंगल, अभी ये स्कैटर शॉट बचा हुआ है। अगर ये स्कैटर शॉट यहाँ पे क्वीन की जगह बलून्स के ऊपर लॉक हो गया होता तो सारे के सारे बलून्स को इसने यहीं पे गिरा दिया होता और ये अटैक वापस से खतरे में आ सकता था। मोगी भाई तारीफ तो करनी पड़ेगी इस अटैक की, क्योंकि इतना ज्यादा रिस्की अटैक था, एंड क्वीन चार्ज की तारीफ करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अकेले क्वीन ने 40% की वैल्यू निकाली होगी इस बेस के ऊपर। एंड मोगी भाई आपको क्या लगता है कि दुनिया की सबसे हार्डेस्ट अटैक स्ट्रेटजीज में से, लाइक आपने बोला क्वीन चार्ज लावा लून एक हो सकता है, और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड हो सकती है? सबसे ज्यादा देखो ये जो ये पैक्का स्मैश है, यानी कि चाइनीज आर्मी, ये भी इस तरह की एक आर्मी है जिसको आपको देखने में ना बहुत आसान सी लगती है। ऐसा लगता है अच्छा गोरांड वार्डन को ऐसे उतार दो, थोड़ी सी फनल बना लेगा, एक तरफ सीज बैरक डिप्लॉय कर दो, बीच में से आर्मी लेके घुस जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अटैक करने जाओगे, अगर आपको इसके साथ खास करके अगर आपको ग्राउंड आर्मी के साथ प्रैक्टिस कम है या लगता, फिर आपको ऐसा लगेगा यार ये आर्मी 60% पे ही मर गई, 50% पे ही मर गई, या फिर इवन 80% तक भी नहीं जा रही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकल आर्मी है। आपको एक एक कंपार्टमेंट का आपको सोचना पड़ता है कि इस वाले कंपार्टमेंट को अपना रॉयल चैंपियन के साथ लेना है, या ये वाला कंपार्टमेंट मेरे को बलून्स के साथ लेना है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए डिफिकल्ट आर्मीज की, तो डिफिकल्ट आर्मीज में से एक पैक्का स्मैश भी यकीनन एक डिफिकल्ट आर्मी में से एक है। बिल्कुल सही बात बोली। एंड फिलहाल इजी माइथोलॉजी ने अपने आखिर के 3 अटैक्स 3 स्टार किए हैं, मतलब लिटरली पहले 2 अटैक्स तो उनके 2-2 स्टार हुए, लेकिन आखिर के लगातार तीनों की तीनों 3 स्टार अटैक्स करें। एंड बिल्कुल ये चीज भी साबित करता है कि ये लोग इसीलिए फाइनलिस्ट में है। लेकिन सबसे बेस्ट टीम जो है वही विजेता बनेगी, एंड सबसे बेस्ट टीम अभी हम लोगों के सामने है, वो है टीम भारत, एंड जीत चुकी है स्टेफनी कप 2020 का। I would definitely give the glory to Team Bharat here. But before that, let's talk about the attack we just had. Cateman did a really amazing job because it surprised both of our casters here today. Because as we saw, it was a really hard strategy to use, but he did a really good job. It just shows that how skillful both of these teams are. And Sumit just mentioned that EG Mythology lost by 1 star, but that was due to the first 2 stars they had. But the rest of the attacks, they've been so good. And Cateman coming in with the Queen Walk La Lune, and he did a really good job. Sumit, elaborate more on the attack which we just saw. बिल्कुल, अभी देखो ताहिर भाई, अभी जो हम लोगों ने अटैक देखा, जैसे हम लोग क्वीन चार्ज में करते हैं, क्वीन चार्ज में हम लोगों को मैक्सिमम कितनी 20-25% वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन क्वीन चार्ज लावा लून में आपका फोकस पूरा का पूरा क्वीन चार्ज के ऊपर ही होता है। हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी देखा था, जहां पे यूटा 14 करके एक प्लेयर था, जैपनीज प्लेयर, वो भी बहुत ज्यादा क्वीन चार्ज लावा लून के ऊपर फोकस करते हैं। एंड उनकी मेन मतलब जो पूरा फोकस होता है अटैक का, वो क्वीन के ऊपर ही होता है, मतलब क्वीन को जिंदा रखना है। क्योंकि इस अटैक में अगर हम लोग देखेंगे, पूरा फोकस इनका क्वीन के ऊपर ही था। सारे के सारे रेड स्पेल क्वीन के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए, सारे के सारे फ्रिज स्पेल क्वीन को बचाने के लिए इन्वेस्ट कर दिए। लावा लून के लिए ना हेस्ट यूज किया, ना ही रेज स्पेल का इस्तेमाल किया। लावा लून मतलब ऐसे मतलब कचरा साफ करने के लिए यूज किया, लेकिन जो मेन फोकस था वो पूरा फोकस क्वीन के ऊपर था। तो क्वीन चार्ज इनका इतना पावरफुल था कि लास्ट तक क्वीन जिंदा रही, एंड लास्ट तक एबिलिटी भी रही क्वीन की इनकी। बिल्कुल सुमित, Definitely, that was a really well planned attack. वो सारी की सारी लगा दी गई क्वीन के ऊपर ही, सारे रेज स्पेल उसके ऊपर लगा दिए गए। क्वीन की हेल्थ बिल्कुल डाउन हो गई थी जब क्वीन क्या कहते हैं टाउन हॉल को टारगेट कर रही थी। बिल्कुल छोटी सी हेल्थ के ऊपर से वापस से क्वीन जब सर्वाइव कर गई। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस अटैक के दौरान हुआ था, क्योंकि वहां पे क्वीन कहीं ना कहीं अपने आप को ध्वस्त भी करवा सकती थी मार्केट। अगर क्वीन इसमें देखो सबसे खतरनाक चीज है, आप कितनी भी हैवी वैल्यू निकाल दो इसमें, आप चाहे 60% निकाल लो। एक बार आप अगर आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप का अटैक आपको यूटा 14 का याद हो, तो ऑलमोस्ट 60-70% वैल्यू उन्होंने क्वीन चार्ज से निकाल दी थी, लगभग पूरा बेस खत्म कर दिया था। लेकिन आखिरी में जाके उनकी क्वीन मर गई थी। जैसे ही क्वीन मरी, वहीं से उनका अटैक वो भी वहां पे फेल हो गया था, इतनी हैवी वैल्यू निकालने के बाद भी। तो इसमें समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात में से यह है कि आपकी क्वीन अगर थ्रू आउट द चार्ज जिंदा रह जाती है आखिर तक, तो कहीं ना कहीं इस अटैक के ट्रिपल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बने रहते हैं। बिल्कुल सही बात बोली मोगी भाई। फिलहाल अभी हम लोग बढ़ेंगे हमारे ताहिर भाई की तरफ।
Well, for now, I would really like to. I would like, without delaying any further, I would definitely let our champions, which is Team Bharat, have their moment because they did a really good job and they are the deserving champions according to this war we just witnessed. And EG Mythology, I wouldn't take anything away from them because I'm pretty sure they've had their tough competition and they made it to the finals. So they did a really good job as well. So for now, we have our winner for the first Stephanie Cup of this. I mean, for the very first Stephanie Cup, the winners of the Stephanie Cup are Team Bharat. And congratulations to them because they did an amazing job, lacking just 1 star from the perfect war they were expecting. And I wouldn't take away any glory from them. So moving forward, thank you so much, Sumit and Papa Mugambo for joining us. I'm pretty sure the audience must have had an amazing fun hearing you guys talk and listening to your take on the attacks we just had. I would also like to thank Mr. and Mrs. Mustafa for hosting this tournament because this helps the community a lot. And whenever the community has been helped, right, it does come back because it brings out talent. So they were talking about how talent works. Whenever you give talent opportunity, more players rise and they show up. And I think that's the best thing what they could have done for this community. And I think they are right on their part. So there will, as mentioned by Mr. Mustafa, there will be a lot more coming our way in 2021, where there will be league seasons where you guys can participate in the tournaments and win such glories, because they were already a little bit mentioned on the live stream, Sumit, because we saw Dr. Mustafa coming in. He was really excited to meet us today. He was really excited to interact with the community as well. So I would also like to thank the audience. Thank you for being here today, joining us in honor to celebrate Stephanie's birthday with us. I'm pretty sure she is really happy looking at the result of the tournament, because this was a really intense tournament. 384 clans participated in this. Out of this, 2 made it to the finals, and we already have our winner. I would also like to thank the management for making all of this happen, because all of this was really amazing and all of us had a really good time. So I would, before ending the stream, I would also like to ask Sumit. Sumit, do you like to add anything to the stream before we go? बिल्कुल। फिलहाल अभी आप लोग जो सभी लोग चैट पे देख रहे हो या फिर लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, आप लोग ये चीजें दिख रही है, लेकिन बैक एंड पे बहुत सारी चीजें हुई है जो कि यूडजी ई स्पोर्ट्स ने बहुत सपोर्ट किया, भारत फैमिली ने, साजिद भाई ने, मतलब बहुत सारे लोग इस स्ट्रीम के पीछे। तो थैंक्स टू उन सभी लोगों को। एंड मिस्टर एंड मिसेस मुश्तबा, उनको भी एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस उनके बर्थडे के लिए। उन लोगों ने इतना बड़ा लीग ऑर्गेनाइज किया एंड आई होप उनकी जो जर्नी आगे वो बहुत अच्छी रहे। एंड ऐसे ही और एक्स्ट्रा लीग्स हम सभी लोगों को खेलने के लिए मिले। और जो भी हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स है, अभी हम लोगों ने देखा 4 में से 3 टीम्स इंडियन थी, टॉप 4 में से टॉप 3 टीम्स इंडियन थी। तो ये चीज आगे और भी बढ़ेंगी, ई स्पोर्ट्स और भी आएगा क्लैश ऑफ क्लैंस में फ्यूचर में। एंड जो ग्रोथ है ई स्पोर्ट्स की क्लैश ऑफ क्लैंस में, वो और भी होती रही। बस मेरे को यही कहना है। Thank you so much for that, Sumit. So I would also like to move towards our next caster, which is Papa Mugambo. Papa Mugambo, this was an amazing tournament. I'm pretty sure you had as much fun as I did and our audience did. So what is your take, and would you like to add something to the stream? जी हाँ, बिल्कुल मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। और ऐड में ये करना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं मिसेस मुस्ताबा को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगा जाते जाते वापस से एक बार फिर से। दूसरी चीज, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है खासकर टूर्नामेंट कराने का और ग्लोबल लेवल पे टूर्नामेंट कराने का, इससे कहीं ना कहीं सीओसी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और सीओसी की कम्युनिटी जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि हमको करने की जरूरत है। और हमको इस चीज के अंदर आगे से बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इधर से जो भाई देखो विनिंग प्राइस, कुछ लोग जानना चाहते होंगे विनिंग प्राइस क्या है। विनिंग प्राइस जो देखो, टीम भारत जो जीत गई, $1000 का मेरे ख्याल से इन लोगों को विनिंग प्राइस मिलने वाला है। लगभग 70-75 हजार रुपए इनको मिलने वाले हैं। और टीम भारत वाले बिल्कुल ये सोच रहे होंगे कि भैया क्या क्या चीज है, क्या क्या सामान खरीदना है। तो सबसे पहले उन लोगों को भाई बिल्कुल कांग्रेस भी करना चाहूंगा, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। कुछ टीम मुझे याद भी है जो इन लोगों ने हरा करके बाहर करी है, जो कि बिल्कुल मुझे लग रहा था जब मेरे को पता चला कि इनका मैच एचटी फैमिली के साथ हुआ, मुझे लगा जब इनका मैच एचटी फैमिली के साथ हुआ अब ये बाहर हो जाएंगे। फिर इनका मैच क्वीन वॉकर्स के साथ हुआ, मुझे लगा अब क्वीन वॉकर्स इनको बाहर कर देगी, लेकिन इन्होंने हर बार हमको भी गलत साबित करा, साथ ही साथ अपोनेंट्स को भी गलत साबित करा और बड़ी से बड़ी टीम को बाहर निकाल करके यहाँ पे वापस से मार्केट में फाइनल्स में जगह बनाई और सेमीफाइनल्स के अंदर मार्कोस गेमिंग को बाहर करा। यानी कि ऐसा नहीं है कि
कोई पतले रास्ते से या छुपे हुए रास्ते से हल्की हल्की टीमों को हराते हुए किसी तरीके से लक के सहारे वापस आ गए हैं फाइनल तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। Definitely. I agree with you, Papa Mugambo, because it has been a really difficult journey, and as I will to the audience that this has been going on from the 2nd of December until this leading in. And before ending the stream, I would definitely like to wish happy birthday to you, Stephanie. Again, thank you so much for Mr. and Mrs. Mustafa for making this happen. We had a really amazing time. I'm sure the audience have enjoyed it as much as we did as well. Until then, please wait for the next year, because there is a lot more coming from Dr. Mustafa and the entire management team. Thank you, Team Bharat. Thank you, UDG Esports. And until then, all of our audience, keep clashing on. This was amazing to host this. And we'll see you guys again next time. Yeah, let's go. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make